امریکی تحفظات پر ایران نے اپنا جواب پاکستان کے ذریعے امریکہ کو پہنچا دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس۔ کہا، ایران کی ابتدائی 14 نکاتی منصوبہ مسترد کرنے کے باوجود امریکہ نے گزشتہ ہفتے پاکستانی ثالث کے ذریعے اپنے مشاہدات بھجوائے۔ ایران نے بھی اسی ذریعے اپنا جواب واشنگٹن تک پہنچا دیا۔ یہ عمل پاکستان کے ذریعے جاری ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ جب ہم نے 14 نکاتی منصوبہ پیش کیا تو امریکی فریق نے اپنے تحفظات پیش کیے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایران کی نئی تجاویز بھی 14 نکات پر مشتمل ہیں۔ دوسری جانب ایرانی خبر ایجنسی فارس کے مطابق امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے یورینیم کی حوالگی سمیت 5 شرائط رکھ دیں، جبکہ ایران کو جنگی نقصان کا معاوضہ دینے اور منجمد اثاثوں کا 25% بحال کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ امریکہ کا اصرار ہے کہ ایران صرف ایک جوہری تنصیب فعال رکھے اور 400 کلو گرام افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ایران جنگ دوبارہ چھیڑنے کی امکان پر گفتگو۔ اسرائیلی فوج ہائی الرٹ، امریکہ کے ساتھ ایران پر حملوں میں شامل ہونے کے لیے تیار۔ ممکنہ جنگ کی صورت میں پینٹاگون نے ایران میں اہداف کا چناؤ کر لیا۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس میں دعویٰ۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ٹرمپ اس ہفتے قومی سلامتی ٹیم سے بھی مشاورت کریں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جرمنی میں امریکی اڈوں سے اسلحہ اور گولہ بارود لے کر درجنوں امریکی کارگو طیارے تل ابیب پہنچے ہیں۔ اسرائیل کے چینل 13 نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ترسیل ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں خطے کی تیزی سے تبدیل ہوتی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی ایسے وقت میں ایران گئے ہیں جب امریکہ کی طرف سے ایران پر دوبارہ حملوں کی بات کی گئی ہے، مگر صدر ٹرمپ کے مطابق پاکستان کی درخواست پر ایسا نہیں کیا گیا۔ محسن نقوی کی گزشتہ روز صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات 90 منٹ تک جاری رہی۔ وزیر اعظم کا قطری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعاون پر مشرق وسطیٰ کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دوران بات چیت پاکستان کی قیادت میں جاری امن کوششوں پر خصوصی توجہ مرکوز رہی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے امن اقدام کی حمایت پر قطر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات سفارتکاری سے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں کا جنگ بندی برقرار رکھنے، مزید کشیدگی سے گریز کرنے اور خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کے تسلسل کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر کی بھی ملاقات۔ پاک چین دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات میں نیوکلیئر انرجی پلانٹ پر ڈرون حملے کی مذمت۔ متحدہ عرب امارات کی قیادت اور برادر عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال اور پیش رفت پر بات چیت کی۔ ایران کا کہنا ہے کہ عرب امارات سمیت خطے کے کسی ملک سے ان کی دشمنی نہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے آبنائے ہرموز میکانزم کے لیے ایران عمان سمیت تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر کے ملٹری سیکریٹری محسن رضائی کا کہنا ہے کہ امارات کو اسرائیل کی سازشوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ امارات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کے صبر کی حد ہے۔ تہران نے ابوظہبی کے ساتھ دوستی کے دروازے بند نہیں کیے۔ محسن رضائی نے یہ بھی کہا کہ ایران کی بندرگاہوں کا محاصرہ ختم نہ کیا گیا تو بحیرہ عمان امریکی فوج کا قبرستان بن جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات۔ خطے کی تازہ صورتحال اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کا قطری وزیر مملکت خارجہ محمد بن عبدالعزیز سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کے امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں علاقائی سفیروں کی کانفرنس کے اختتامی اجلاس میں ہونے والی مشاورت اور سفارشات کا بھی جائزہ لیا۔ وزارت خارجہ اور سفارتی مشنز کو قریبی رابطہ اور مؤثر فالو اپ یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا، دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत ने दोबारा ललकारा तो भारत का जोग्राफिया बदल कर उसे तारीख का हिस्सा बना देंगे। भारतीय आर्मी चीफ की धमकी का जवाब देते हुए वज़ीर दिफा ने कहा, भारत को पहले जो मार पड़ी है अभी तक उसे सहला रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि ईरान पर अमेरिका या इसराइल के दोबारा हमले का कोई इम्कान नहीं है क्योंकि दूसरे ममालिक जंग के हक़ में नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने दो टूक अल्फाज में कहा, 28वीं तरमीम पर काबीना में अभी तक कोई बात नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 31 मई तक मुल्क भर में कारोबारी मराकज़ को बंदिश के मुक़र्ररा औक़ात से इस्तिस्ना दे दिया। काबीना डिवीज़न की जानिब से इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन जारी। तमाम बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। बेकरीज, तंदूर, रेस्टोरेंट्स और किराना स्टोर्स भी मुक़र्ररा औक़ात से मुस्तस्ना होंगे। दूसरी जानिब एक और इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी के ज़खायर और पन बिजली मनसूबे तरक्याती बजट खर्च करने की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। ऐसे तरक्याती मनसूबों में अवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हों। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में 5,500 रुपये इजाफे का मुतालबा। रकम 14,500 रुपये से बढ़ाकर 20,000 करने की तजवीज़ दे दी। IMF मिशन के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक BISP हुक्काम ने मिशन को किफ़ालत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड डेटा पर ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल किफ़ालत प्रोग्राम की सहमाही रकम में इजाफा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला, पीपल्स पार्टी का गवर्नर और नून लीग का अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर विफाक के सामने हम आवाज़। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफाक से सूबे के हुकूक अदा करने का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबे को आटा फराहम नहीं किया जा रहा, हमारे CNG स्टेशन बंद किए जा रहे हैं, हम रियासत को सस्ती गैस और बिजली दे रहे हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमारे सूबे के साथ ज़्यादती होगी तो हम अवाम के साथ खड़े होंगे। विफाक को बार बार कहा, हमारे सूबे के साथ ज़्यादती बंद होना चाहिए। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान बोले, विफाकी हुकूमत काम कर रही है लेकिन मसाइल भी तवज्जो तलब हैं। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म को CNG स्टेशन की बंदिश पर ख़त भी लिख दिया। कहा, CNG स्टेशन से हज़ारों अफराद के रोज़गार मुतासिर होने का खदशा है। इफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं, करप्शन बदउनवानी उरूज पर है। शाहाना अखराजात किए जा रहे हैं, सियासत पर अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है। सूबाई काबीना की तादाद बढ़ा दी गई है। नाअहली के अलावा इन वज़रा और मुशीरों के इंतखाब का कोई और मयार नहीं। क्या काबीना की तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि वोटर्स की उम्र के तयन पर मज़ीद बहस होनी चाहिए। एक तसव्वुर है कि बच्चा जब 16 या 18 साल का हो जाए तो वो आज़ाद है। जितनी भी शिकायत हैं 18 से 22 साल के दरमियान हैं। जिन बच्चों की आइस या ड्रग्स से अमवात हुई हैं उनकी उम्र 18 से 22 साल तक है। पार्लियामेंट हाउस में JLU से गुफ्तगू करते हुए कहा, 28वीं तरमीम के बजट से कबल आने का कोई चांस नहीं है। लगता नहीं कि 28वीं तरमीम पर अगले 10-15 दिनों तक इत्तफाक़ राय होने वाला है। साल में जब कभी इत्तफाक़ राय हुआ तो तरमीम आ जाएगी। आईनी तरमीम हमारे इत्तेहादियों के मुशावरत के बगैर नहीं आएगी। 28वीं तरमीम में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। GB और आज़ाद कश्मीर का यह मुतालबा है कि उन्हें NFC नेट में लाया जाए। ये चीज़ें ज़ेर बहस हैं, सबको अपनी तजावीज़ देनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने सेनेट इजलास से खिताब में अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत भी दी। कहा, जब कहेंगे 24 घंटे में आपकी वज़ीर आज़म से मीटिंग हो सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी PTI से किसी इंसान को मिलवाना नहीं जा रहा, वो कैद तन्हाई में है। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मंगल और जुमेरात को बानी PTI से मुलाकातें होंगी। आज तक हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, खामोश नहीं होंगे, हर रोज़ कोर्ट को याद दिलाएंगे कि जुल्म हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा, सारी दुनिया में वोटिंग की उम्र को कम किया जा रहा है, ये वोटर की उम्र बढ़ा रहे हैं क्योंकि खौफजदा हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, 18 साल वालों को वोट के हक से महरूम करने से जमहूरी अमल मुतासिर होगा। इफाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वोट करने की उम्र की हद 18 से 25 साल करने की बातें अफवाहें हैं।
पंजाब में मॉडल विलेज प्रोग्राम के तहत 2000 देहात को जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है। रवाबित में इजाफे के लिए शाहराहों और बुनियादी ढांचे को तरक्की दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। कहा सुथरा पंजाब मेगा प्रोजेक्ट के तहत सफाई का जामे निज़ाम मुरतब किया। SCO ने लाहौर को अहम सकाफती शहर करार दिया। सयाहत के शोबे पर तवज्जो मरकूज़ है। मरियम नवाज ने भरपूर मेहमान नवाजी पर आज़रबाईजान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद के मौके पर आज़री सदर इल्हाम अलियौफ और उनकी अहलिया ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। इससे पहले मरियम नवाज ने बाकू के कदीम इलाके में जाकर तनूर में रोटी भी बनाई। जून में बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। बिजली सारिफीन को 5 से 6 रुपए फी यूनिट माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बोझ से बचा लिया गया। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट को 1.73 रुपए फी यूनिट के इजाफे पर रोका गया है। पहली सेमाही में बिजली सारिफीन को 65 अरब रुपए की वापसी मुमकिन हुई। पहली सेमाही एडजस्टमेंट की बदौलत सारिफीन को ₹1.93 फी यूनिट रिलीफ दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पॉलिसीज के तसलसल, बिजली की तलब में इजाफे, स्पेशल पैकेज की बदौलत सार्फिन को रिलीफ दिया गया। मकामी गैस की इजाफी फराहमी, दरामदी कोल प्लांट से पैदावार से लोड मैनेजमेंट को कम किया गया। वज़ीर आज़म की एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रेलवे, ज़राअत, ज़रई सनत, इलाकाई रवाबित के शोबों पर शमूलियत पर बातचीत की। काबिल तजदीद और मकामी तवानाई के वसाइल, IT, मसनूई ज़हानत के शोबों में शमूलियत पर भी गुफ्तगू। सदर AIIBB ने कहा कि बैंक पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक शोबों में मुनज़्ज़म अंदाज में मावनत फराहमी गहरी दिलचस्पी रखता है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत GCC ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सुफरा का भी इजलास। सफ़ीरों ने वज़ीर आज़म को दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल, मवाक़े और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। मुखालिफ बिरादरी में नौजवान जोड़े की पसंद की शादी के बाद जैकबाबाद के गांव में जलाए गए दर्जनों घरों के मकीन बेघर और बेआसरा हो गए। मुतासरीन की दुहाइयाँ, कहते हैं सिर्फ घर ही नहीं जले, सारा सामान तबाह हो गया। माली हालत और ख़राब हो गई। जिनके रिश्तेदार पनाह दे रहे हैं वो तो वहाँ चले गए, बाकी ख़ानदान अपने तबाहाल घरों के बाहर ही खुले आसमां तले रहने पर मजबूर। एक मुतासरा ख़ानदान के घर में मौजूद जहेज़ का सारा सामान भी जल गया। चन्ना बरादरी और बड़रो बरादरी के सरदार गांव जलाने के इल्ज़ामात एक दूसरे पर धरने लगे। घरों को जलाने में मुलव्वस गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान 6 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची की अदालत ने मनशियात केस में गिरफ्तार मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। मुल्जिमा की पेशी के मौके पर सादा लिबास एहलकारों ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। कमरे अदालत में शोर शराबा। मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ पंजाब पुलिस की तहकीकात भी जारी। लाहौर पुलिस का दावा है साबिक शौहर नासिर ने पिंकी को कोकेन बनाने का माहिर बनाया। मियाँ बीवी पूरे मुल्क में कोकेन सप्लाई करते थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है पिंकी हेरोइन बनकर घूम रही थी। धड़ल्ले से कहती थी मुझे गिरफ्तार करो, हमने गिरफ्तार कर लिया। सूबाई असम्बली से खिताब में ज़िया लंजार ने पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार करने का इरादा जाहिर किया। कहा पिंकी ने मनशियात के 800 खरीदार तो खुद बताए हैं। मनशियात इस्तेमाल करने वाले बच्चे बच्चियों के नाम सामने नहीं लाएंगे। कराची के पौश इलाकों के लड़के लड़कियों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्मों को कोकेन की फरोख्त में मुलव्वस 2 गिरफ्तार मुल्जिमान ने अनमोल और पिंकी के कोकेन सप्लाई करने का इतराफ़ कर लिया। मुल्जिम फरहान और अब्दुल मगनी को SIU पुलिस ने मार्च 2025 में गिरफ्तार किया। जी न्यूज़ को हासिल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम फरहान का नाम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट में भी आया। मुल्जिमान स्याह फार्म गैर मुल्कियों से मनशियात मंगवा कर पॉश एरियाज़ में सप्लाई करते थे। दोनों जमानत हासिल कर चुके। 1 साल गुजर जाने के बावजूद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। सना यूसुफ कत्ल केस में मुल्जिम उमर हयात ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सना यूसुफ कत्ल केस की समाअत में मुल्जिम ने कहा उसने सना के कत्ल करने का कोई एतराफ़ नहीं किया, कोई इंकशाफ नहीं किया, उसका सना यूसुफ से कोई राब्ता भी नहीं था। जज ने कहा दौरान तफ्तीश सना यूसुफ के फ़ोन से काका के नाम से एक नंबर सामने आया है। मोबाइल फॉरेंसिक के बाद नंबर आपका निकला, क्या कहेंगे? मुल्जिम उमर हयात ने कहा वो वकील के बगैर जवाब नहीं दे सकता।
जज ने मुलजिम से पूछा, क्या आप सना यूसुफ को कत्ल करने के लिए उसके घर गए? सीने पर 2 फायर किए, मोबाइल लिया और चले गए? मुलजिम उमर हयात ने जज अफजल मजोका के हर सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। कमरा अदालत में वीडियो बनाने पर जज अफजल मजोका और वकील सफाई में तल्ख कलामी। जज ने कहा, अगर वीडियो वायरल हुई तो मैं मिसकंडक्ट होगा। कराची में 4 रोज कबल सी व्यू रोड पर डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से कार सवार शख्स की हलाकत। वाक़े का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली, लेकिन डेरा मुराद जमाली से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी मुलजिम नौमान अली अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का कराची से बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। मुलजिम की गाड़ी से महकमा एक्साइज बलूचिस्तान के दस्तावेज बरामद। हादसे के वक्त गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। हादसे के बाद मुलजिम ने पहले अपनी टूटी फूटी गाड़ी डिफेंस फेज 2 की एक अकामती इमारत में छुपाई और बाद में करीबी वर्कशॉप में मरम्मत के लिए भेज दी थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जमींदारों से 2,25,000 टन गंदम खरीदने का ऐलान। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि पी हुकूमत अपने वसाइल से 3500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदेगी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध निसार खोड़ो ने कराची की तमाम 246 यूसीज की 3 साला खुसूसी माली ऑडिट का हुक्म दे दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुसूसी फाइनेंशियल ऑडिट कराने से मुताल्लिक खत लिखा था। इस्लामिया कॉलेज पेशावर की टीचिंग अस्पताल एसोसिएशन ने खातून फैकल्टी मेंबर के साथ तलबा की जानिब से बदतमीजी और हिरासा करने के खिलाफ तमाम तालीमी सरगर्मियों का बॉयकॉट कर दिया। मुतासरा खातून टीचर के मुताबिक वाइस चांसलर की जानिब से अब तक मुलव्विस तलबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं। जहाँ पे बच्चों के साथ ऊँट लेने आए 4 लाख 5 लाख, इस हिसाब से कोई अच्छा बन जाएगा तो उससे ले लेंगे। कुछ लेते हैं, कुछ रेट का कदर नहीं करते, उसको समझ में नहीं आता है। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियां सज गईं। अवाम भी अपने मनपसंद जानवर लेने पहुंच गए। बच्चों को खूबसूरत बकरों की तलाश, कोई गाय तो कोई बैल मुनासिब कीमत में लेने की तकोदौ में। जिला मटियारी में भी ऊँट मंडी कायम कर दी गई। सिंध भर से व्यापारी ऊँट फरोख्त करने पहुंच गए। लाहौर में जानवरों की सजावट के सामान और जेवरात की कीमतों में नुमाया इजाफा। हार, घंटियां, रंग बिरंगे फीते, झूमर और पायलें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगनी कीमत पर फरोख्त होने लगी। ये जेवरात इसलिए महंगे हो चुके हैं क्योंकि महंगाई, पेट्रोल, गैस। सिलट टेस्ट के तीसरे रोज बांग्लादेशी टीम की शानदार बल्लेबाजी। 390 रन बनाकर पाकिस्तान पर 436 रन की बर्तरी हासिल कर ली। मुशफिकुर रहीम 137 रन बनाकर नुमाया रहे। चौथे दिन पाकिस्तान टीम अपनी दूसरी इनिंग्स 0 रन बगैर किसी नुकसान के शुरू करेगी। जीत के लिए उसे 437 रन बनाना होंगे। पाकिस्तान हदफ हासिल करने में कामयाब हुआ तो टेस्ट क्रिकेट की नई तारीख रकम होगी। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे बड़ा हदफ 418 रन वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल किया था। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच उमर गुल का कहना है कि उनके और शाहीन आफरीदी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। सोशल मीडिया पर आने वाली खबरें दुरुस्त नहीं। शाहीन से कहा था कि हसन अली के सर पर गेंद लगी है, कंकशन का वक्त कम होता है, इसलिए आप तैयार रहें। खेल के तीसरे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मैच दोनों टीम्स के लिए बराबर है, ड्रॉ के इम्कानात कम हैं। अगर 2 दिन अच्छी बैटिंग की तो मैच जीत सकते हैं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत पुरुमीद हूँ। नौजवान जदीद उलूम के जरिए वतन की तरक्की के लिए पुरजोश अंदाज में काम कर रहे हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में खिताब के बाद जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, तरक्की के सफ़र में ख़वातीन का किरदार नहायत अहम है। मलाला ने कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन, लबनान और अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। कहा, फ़लस्तीनी तालबात अपने मसाइल को समझती हैं, उनके पास उनके हल भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान में लड़कियाँ छुप कर तालीम हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। मलाला ने तलबा के साथ एक गोल मेज़ इजलास में शिरकत की और क्विज़ मुकाबले में हिस्सा भी लिया। कॉन्फ्रेंस में पंजाब और KPK के वज़राए तालीम भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद परेशान कुन हद तक ज़्यादा है। बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता करने की ज़रूरत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अपने बच्चों को चाइनीज़ पढ़ाएं ताकि चीन पढ़ने जा सकें। चीन के कई तालीमी इदारे पाकिस्तान में अपने कैंपस कायम करना चाहते हैं ज़्यादा पाकिस्तानी तलबा AI डिजिटल एजुकेशन चीन से हासिल करें। चीन तालीम के शोबे में जो जिद्दत रखता है वो किसी और के पास नहीं।
बाजोड़ में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर, पुलिस टीम पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद, हमलावर फरार। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन, इलाके में सिक्योरिटी सख्त। मकबूजा गजा पट्टी के लिए इमदादी मिशन में शामिल पाकिस्तान के 7 ईदी समेत मुतादिद एक्टिविस्ट को इसराइली फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। 7 ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के बेटे हैं। वो तुर्की के शहर से फ्रीडम फ्लोटेला के हमरा गजा रवाना हुए थे। इस मिशन में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के 500 से ज़ायद कारकुन शरीक हैं। 7 ईदी ने वीडियो पैगाम में कहा, अगर दुनिया ये वीडियो देख रही है तो इसका मतलब है कि उन्हें इसराइल ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें वतन वापस लाना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने इसराइली फ़ौज की तरफ से 7 ईदी की हिरासत की शदीद मजम्मत की है। कहा, ऐसे इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। खासकर फ्लोटेला पर सवार अफराद के साथ बदसलूकी की रिपोर्ट्स तशवीशनाक हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साक़िब की मुलाकात। खुद मुख्तार बॉन्ड्स की टोकनाइजेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए सरमायाकारी निज़ाम को जदीद बनाने पर अहम मुशावरत की गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, रोशन डिजिटल अकाउंट में 2020 से अब तक $13 अरब से ज़ायद सरमायाकारी आई। बिलाल बिन साक़िब ने कहा, टोकनाइजेशन से पाकिस्तान के लिए सरमाया इकट्ठा करने के नए मौक़े पैदा होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक की टीम की मुलाकात, इक़्तिसादी इस्लाहाती तरजीहात और इदारा जाती तब्दीली के एजेंडे का जायज़ा लिया गया। FVR में इदारा जाती तब्दीली के इक़दामात पर भी बातचीत हुई। वज़ीर ख़ज़ाना से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और AIIB का तवील मुद्दती फाइनेंसिंग पाइपलाइन पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से FPCCI वफ़द ने भी मुलाकात की। और कराची में फिल्म साइको की ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्चिंग की तकरीब, फिल्म की कास्ट और शोबिज़ शख्सियात की शिरकत। शान शाहिद, मीरा और सोनिया हुसैन ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अदाकार शान ने साइको को मुनफरिद मौजू की फिल्म करार दिया। अदाकारा मीरा की कराची वालों को ईद पर सिनेमा आने की दावत। अदाकारा सोनिया हुसैन ने शान और मीरा के साथ काम को यादगार करार दिया। मुनफरिद कहानी, ताकतवर कास्ट और सनसनी से सजी फिल्म साइको ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। जियो फिल्म मीडिया पार्टनर है।